हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के द्वारा मैं स्कूल अथॉरिटी से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगी। होप दे टेक देम पॉजिटिवली एंड प्रोफेशनली एंड दे डोंट टेक द पॉइंट्स एज रेज्ड बाय मी पर्सनली। मैंने भी आर्ट ऑफ टीचिंग पर 11 वीडियोस बनाए हैं। टीचर्स को ये करना चाहिए, टीचर्स को ये नहीं करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। बट आज मैं स्कूल अथॉरिटी से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। बिफोर वी आस्क द टीचर्स टू इम्बाइब वैल्यूज़, डिसिप्लिन एंड आवर ओन विजडम, कैन वी आस्क ourselves a simple but a very honest question? And yes, the question is, are our teachers well mentally, psychologically and professionally? Can we give an honest answer to this question? क्योंकि a stressed teacher cannot give her best. An exhausted teacher cannot nurture her students. To nurture her students, to imbibe the values, the discipline and the wisdom of the school in the students, she needs to be free from stress, any kind of. She needs to be taken care of. So, well-being of the teachers today is not a luxury, rather it's a necessity. It's need of the hour. मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर्स, नीड ऑफ द आवर, जिसमें मैंने टीचर्स को कुछ इनपुट्स दिए थे कि हाउ दे कैन टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ and what are the reasons responsible for their mental whatever problems or issues they are going through or they are facing. तो आज की वीडियो में मैं कुछ इनपुट्स स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ शेयर करना चाहूँगी so that they can ensure the well-being of their teachers. Because if the teachers are taken care of, their well-being is taken care of, the school flourish and the society prospers. So it is our bounden duty to ensure the well-being of the students. I am talking to the school authorities. So I have made a 5-point plan for this purpose. If you can agree with me, then you can incorporate this plan in your school for the well-being of your teachers. Number 1, respect your teachers, because respect arouses trust. Respect is the foundation of any relationship, personal as well as professional. So you should avoid insulting or humiliating teachers publicly in front of the parents and their students. It happens in most of the schools. Deliberately or unintentionally, I don't know, but it happens. And the sensitive teachers, they are not able to take it. So you respect teachers and then you earn their trust. Number 2, manage their workload. कुछ स्कूल्स में तो वर्कलोड काफ़ी बैलेंस्ड होता है, बट कहीं कहीं पर ये बैलेंस नहीं होता और टीचर्स के पास अपने पर्सनल कोई भी टाइम नहीं बचता. दे आर ऑलवेज बिजी डूइंग स्कूल्स वर्क एंड इवन एट होम. तो अगर आप टीचर्स का वर्कलोड मैनेज कर दें, उनको अननेसेसरी मीटिंग्स, शेड्यूल्स, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क से अगर आप रिलीव कर दें एंड लेट देम फोकस ऑन देयर टीचिंग, ऑन देयर एकेडमिक्स ओनली, the results are going to be wonderful, mesmerizing, which you might not have dreamt of. I can assure you of that. टीचर्स को आप थोड़ा सा पर्सनल टाइम दे दीजिए उनकी लाइफ के लिए, तो उनका जो प्रोफेशनल आउटपुट है वो इम्प्रूव होगा बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस. नंबर 3 जो है, टीचर्स को आप इमोशनल सपोर्ट दीजिए. Teachers are also human beings. They must be going through some personal problems, through some professional problems.
तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम or snubbing them very badly कि when you come to school you have to give your output, I don't want to listen what is going on in your personal life, that is very inhuman. एक टीचर, खासकर लेडी टीचर्स को कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उनको डोमेस्टिक फ्रंट भी हैंडल करना पड़ता है। तो अगर आप उनको थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट दे दें, थोड़ा सा एक आप उनको इमोशनल हियरिंग दे दें, ठीक है, इट मे नॉट सॉल्व देयर प्रॉब्लम बट एटलीस्ट इट विल गिव अ वेंट टू देयर फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स। और जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आप वर्कशॉप्स, सेमिनार्स करवा सकते हैं, आप एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं, जिससे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्रेस हो जाए और उनका आउटपुट इम्प्रूव हो जाए। ये बड़े ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप उनको इमोशनल सपोर्ट दीजिए तो आप उनकी वेलबींग को इंश्योर करेंगे। नंबर 4 इज़ ट्रस्ट टीचर्स प्रोफेशनल जजमेंट एंड डोंट अपॉइंट माइक्रो मैनेजर्स। इन सम ऑफ द स्कूल्स माइक्रो मैनेजर्स आर अपॉइंटेड एंड दे आर given different names. I would not want to take the names, but they are micromanagers. As far as possible, micromanagement should be avoided because micromanagement will curb teachers' creativity. You should, as far as possible, trust their professional judgment, and you should not interfere in their classroom teaching as far as possible. If the teachers are trained, experienced, then you should leave it to them. Let them use their prudence and judgment to teach the students. And if you feel that they are not trained, competent or experienced, then you should organize the teachers training workshops instead of appointing the micromanagers. Because जितना आप उनको फ्री हैंड देंगे, जितना आप उनकी प्रोफेशनल जजमेंट पर बिलीव करेंगे, उतना ही आप उनकी क्रिएटिविटी को उभरने देंगे, निखरने देंगे, संवरने देंगे। नंबर 5 इज़ इमोशनल, प्रोवाइड देम emotional safety or security. Emotional safety or security means they should be given liberty or freedom to express themselves freely. They should not be working under fear or pressure. जो भी उनके माइंड में हैं आइडियाज़, थॉट्स, उनको इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो आपके साथ उन अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को फ्रीली शेयर कर सकें विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर और हेजिटेशन। और कई बार अगर आप उनको ऐसा अलाउ करेंगे तो कई बार वो ऐसे आइडियाज़, थॉट्स शेयर करेंगे आपसे दैट यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर द आइडियाज़, थॉट्स फ्रॉम देयर माउथ्स, क्योंकि वो आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ प्रेशर वो आइडियाज़ आपसे शेयर नहीं कर पा रही हैं। तो जब आप उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपने आइडियाज़, थॉट्स आपके साथ शेयर कर सकें और उनको जब ये भी कॉन्फिडेंस होगा कि उनके आइडियाज़, थॉट्स को स्कूल में इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है और किया जाएगा, तो दे विल बी कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, दे विल बिकम कॉन्फिडेंट और उनका जो आउटपुट है वो इम्प्रूव हो जाएगा। उनको जब ये एहसास होगा, ये एहसास दिलवाया जाएगा कि उनकी भी स्कूल की वर्किंग में, स्कूल की फंक्शनिंग में कोई से है। तो इसलिए अगर आप इन 5 पैरामीटर्स पर काम करें तो अपनी टीचर्स की वेलबींग को इंश्योर करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स नॉट द रिजल्ट। जनरली स्कूल्स में क्या होता है कि टीचर्स आर जस्ट इवैल्यूएटेड on the basis of their 10th or 12th board class exams results, whereas teachers' efforts should be taken into account while rewarding them, while whatever recognition or incentive you are going to give them. तो जब उस टीचर को ये पता चलेगा, किसी भी पर्टिकुलर टीचर को, कि उसने जो एफर्ट्स किए हैं, भले ही उनका कोई रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन उसके एफर्ट्स को स्कूल अथॉरिटीज़ ने ड्यूली रिकग्नाइज़ किया, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इट विल
एनहांस मल्टीफोल्ड। और नेक्स्ट टाइम वो होल हार्टेडली पुटिंग हर हार्ट एंड सोल into her work, she or he will work. And let me tell you, such persons may become an asset for your school, जिनके आपने efforts को recognize किया, not the result. क्योंकि result कई बार क्या होता है, उसमें बहुत factors होते हैं। कुछ बच्चे मेहनत ज़्यादा कर देते हैं या कुछ बच्चे इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं, तो रिज़ल्ट के बेसिस पर आप एक टीचर की परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते और ना ही आपको करना चाहिए। आपको टीचर्स के एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज करना चाहिए कि इस टीचर ने एफ़र्ट्स कितने किए, इसने कितनी एक्स्ट्रा क्लासेस ली, इसने कैसे बच्चों को पर्सनल अटेंशन दी, इसने कैसे अपने पर्सनल टाइम को सेक्रीफाइस किया अपने स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इन चीज़ों को अकाउंट में लेंगे while judging or evaluating the teacher's performance, then you are going to earn their respect as well as their trust. और वो टीचर्स आपके स्कूल के लिए एक ऐसा इनवैल्यूएबल असेट बन जाएंगे कि आपको भी हैरानी होगी कि इस टीचर को मैं सबसे कम रेट पर रखता था, कम रैंकिंग या रेटिंग पे रखता था कि दिस टीचर कैन नॉट do anything because her results, board results और school results are not up to the mark. लेकिन जब आप उस पर्टिकुलर टीचर के एफर्ट्स को रिकग्नाइज करेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग इनटू अकाउंट द बोर्ड रिजल्ट्स, his or her performance is going to mesmerize you. तो ये 5 और लास्ट में जो मैंने कहा 6th पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करिए, नॉट द रिजल्ट्स। और जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया था, रिस्पेक्ट से ही ट्रस्ट बिल्ड होगा। आप टीचर्स को रिस्पेक्ट करिए, डोंट ट्राई टू ह्यूमिलिएट और इंसल्ट देम इन फ्रंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स और द स्टूडेंट्स पेरेंट्स। द टीचर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू डू एनीथिंग बाय गोइंग आउट ऑफ द वे for the students, for the school. टीचर्स बेसिकली कौन होते हैं? जो बहुत सेंसिटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वही टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं। एंड इट्स वेरी इजी टू अर्न द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ सच सेंसिटिव इंडिविजुअल्स। आप उनको एक रिस्पेक्ट दीजिए, उनका ट्रस्ट गेन करिए, विन करिए, एंड leave rest of the things to them. They are going to do wonders for the school, for the students, because I feel and believe where the teachers are valued, the things happen automatically, naturally, and a teacher who is well taken care of can only shape the young minds. आई होप यू एग्री विद मी। अगर आप मेरे इस वैल्यू सिस्टम से एग्री करते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर द वीडियो with your colleagues and subscribe to our channel EduTalk with Asha Mittal to watch more of such educational videos. Thank you.